کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ تو گمراہ آدمی کتنا آپ کو کس نے بولا؟ وہ باتیں یزید کی کرتا ہے، حسین کی کرتا ہے، کھڑا یزید کے ساتھ ہو جاتا ہے. جس کا دماغ بن رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. جو 10 پوائنٹس انجینئر صاحب نے بتائے وہ بہترین بتائے ہیں. اگر یہ پہلے سے امپلیمنٹ ہوئے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آتا. میرے خیال سے تو حکومت کا قصور تھا، جو کہ پی کے کی حکومت تھی یا ہماری پنجاب کی تھی. جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، ان کے اپنے کام ہوں تو ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ 1.5-2 گھنٹے جہاں پہ وہ بیچارے پھنسے رہے ہیں. دیکھیں، حسینیت اور یزیدیت کا اصل محقق کیا ہے؟ آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں حسینیت اور یزیدیت کیا ہے؟ کیا حسینیت یہ ہے کہ جس کو لوگ بوم دے دیں، جس کے پاس شہرت آ جائے وہ حسین ہو جائے؟ الحمدللہ میں جب تقریر سنی میرا دل اندر سے دل بولا کہ واقعی حق کی بات ہے. جب حق کی بات پتہ چل گئی اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اب ہم نے آگے جانا چاہتا اور دوستوں کو بتائیں گے. کسی بھی عالم کو سن لے، ایک دل میں اترے گی یا دماغ میں اترے گی، دونوں میں نہیں اترے گی. ان کی بات روح کو گرم کر دیتی ہے. کربلا کا نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایک حدیث پہ کلیئر کر دیا 2812. اس کے اوپر بات جاتی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی بات ہو یہ بندہ بحث کرے. نہیں تو حسین کی سائڈ پہ کون کھڑے ہوئے ہیں پھر؟ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صرف باتیں ہی کر رہے ہیں، کھڑا تو کوئی نہیں ہوا. کون گیا ہے فلسطین جہاد کرنے؟ کون گیا ہے ایران جہاد کرنے؟ کہ اگر آپ کو ایک چیز کا نہیں علم نا تو آپ کو ایک گمراہی میں ہے تو کوئی بات اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک چیز جب علم ہو چکا ہے، پتہ چل گیا، اس کے بعد آپ کہتے تو پھر وہ گناہ ہے. جو بابوں نے جو ہے نا اپنی جو دین تصوف کی جو کتابوں میں کام ڈالا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا ایکسپوز کیا انہوں نے. پھر بات پتہ چلی کہ یہاں سے معاملہ نہیں گڑبڑ، معاملہ پیچھے سے گڑبڑ. تو کیا لگتا ہے یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ کیوں خلاف ہیں؟ میرے خیال میں روزی روٹی والا مسئلہ ہے شاید ان کا، کیونکہ علی بھائی کے بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں، جس میں جو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری روزی روٹی اس سے نہیں وابستہ. لیکن میں جس طرح مصباحی صاحب کہتے ہیں اللہ سے توفیق مانگ رہا تھا، میں بھی اللہ سے توفیق مانگ رہا تھا. آپ کو توفیق مل گئی لیکن مصباحی صاحب کو نہیں ملی ابھی تک. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. آمین آمین. کہ یار اللہ نے محمد علی مرزا کو اتنا علم دیا، اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے. یہ ہے رشک. اور حسد کیا ہے؟ وہ یہ آگے نکل گیا، اتنا آگے نکل گیا، وہ یہ کیسے لے لیا، اس کو تو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا. او بھائی ہاں، نکتہ چینی مت کرو، تمہارے اندر کون سی مکملیت ہے. یار بڑے بڑے عالم دین کہتے ہیں، مجھے تو ان کی بات سمجھ آتی ہے. نہیں ان کو بات سمجھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کو حق بات نظر نہیں آتی. آج کل ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ انجینئر سب باتیں سے آنگی کر کے کھڑے یزید کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سب کے اوپر اپنے ایک ذہن ہے، اس کو مطلب کسی نے ریسرچ نہیں کی، کسی نے سنا نہیں. جب پراپر کسی کو سننا نہیں ہے تو آپ کسی کے بارے میں مطلب اس طرح کر بھی نہیں سکتے بات. لیکن جب کوئی مشکل میں پھنس جائے تو آپ کو کم از کم ان کو بچانا چاہیے. اب افغانستان میں اسی دن جو ہے نا سیلاب آیا تھا تو وہ ہیلی کاپٹر سے بچا رہے تھے، ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پر جلسوں میں تو فٹافٹ جو ہے نا ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں اور بندے بٹھا کر لے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. ویسے بھی میں یہ کہوں گا برملا کہ مولانا مولوی صاحب تہاڈی وقت مک گئی ہے. کیوں کہ مولانا گوگل آ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حال میں ریکارڈنگ ہو چکی ہے ختم. آج سیشن نمبر 205 تھا اور پبلک سروے نمبر 98 کی ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. حال میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اب ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے آ جا کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ بھائی کدھر سے آئے ہو؟ ہم آئے سہیوال سے. سہیوال سے کتنے لوگ آئے ہو؟ ہم 4 آئے. 4. خیر خیریت ہے؟ سفر ٹھیک رہا؟ جی الحمدللہ. کیسے آنا ہوا؟
ये तकरीर सुनने आए इंजीनियर अली मिर्ज़ा के। ये तो गुमराह आदमी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। मुझे 3-4 साल हो गए हैं। जब मेरा जो भाई है वो उसने सुना इसको, वो मुझे इधर लेके आया। मैं दूसरी दफ़ा इधर आया हूँ। 2 भाई और भी हैं, वो भी सहीवाल हैं। उनको मैंने सीधी राह पे लेके आया हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी पे। अभी उतरी दफ़ा वो उनको भी साथ लेके आऊँगा। ये उलमा तो कहते हैं जो इंजीनियर साहब को सुनता गुमराह हो जाता है। वो कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है इंजीनियर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब तकरीर सुनी, मेरा दिल अंदर से दिल बोला कि वाकई हक़ की बात है। जब हक़ की बात पता चल गई, अब हमने पीछे नहीं हटना, अब हमने आगे जाना इंशाअल्लाह। और दोस्तों को बताएंगे। और दोस्तों को बुलाओगे? जी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत बेहतरीन फर्स्ट क्लास रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? शबाज। शबाज किधर से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? शादरे से। शादरे से। जी। खैर खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। किधर आए हो वैसे? उस्ताद जी के पास, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास। ये तो गुमराह आदमी कितना? ना ना, आपको किसने बोल दिया? वो बातें यजीद की करता है, हुसैन की करता है, खड़ा यजीद के साथ हो जाता है। जिसका दिमाग बंद है उसका कुछ नहीं हो सकता। यार आजकल लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। कहने दो लोगों को। अच्छा, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता। अच्छा, हम आए इसलिए तो आए हैं। ठीक हो गया। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। इंजीनियर साहब ने आज एक करंट अफेयर के तौर पर बात की है। वो जो स्वात इंसिडेंट हुआ, क्या लगता है किसकी गलती थी? उनकी गलती थी, हुकूमत की गलती थी, इंतजामी की गलती थी। सही किया उन्होंने, सही जवाब दिया। और जो आज इंजीनियर साहब ने काउंटर नैरेटिव दिया है, जी जी, क्या लगता है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। इसी तरह होना चाहिए। जी बिल्कुल, सही हो गया। ऐसा होना चाहिए। मुलाकात की है? करने अभी। जाओ मिल के आओ। जज़ाकल्लाह। आज और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद उज़ैर। मोहम्मद उज़ैर भाई कहाँ से? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। जी। खैर खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। कैसे आना हुआ जी? बस इंजीनियर साहब को सुनने के लिए आए हैं। इंजीनियर साहब कब से जानते हैं इनको? मैं तो वैसे मुतारफ़ तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन मैंने जो प्रॉपर्ली सुनना शुरू किया वो 2022 में सुनना शुरू किया, तो तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसा पाया? बेहतरीन। मुझे यानी कि कुरान और सुन्नत की और जितना भी दीन की सही तालीमात थी वो इंजीनियर साहब से ही मिली हैं। उससे पहले तो बस कहानी ही सुनते रहे। कुरान और सुन्नत की बातें तो बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर खड़ा होने का वक्त आता भाग जाते हैं। किसके ऊपर खड़े हैं? वो कहते हैं यजीद की, हुसैन की बातें करता है, लेकिन जब खड़ा होने का टाइम आता भाग जाता है। नहीं तो हुसैन की साइड पे कौन खड़े हुए हैं फिर? वो जो कह रहे हैं वो भी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, खड़ा तो कोई नहीं हुआ। कौन गया है फ़लस्तीन जहाद करने, कौन गया है ईरान जहाद करने? वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, व्लॉग बनाते हैं और बैठ जाते हैं अपनी जगह। इंजीनियर साहब भी नहीं जा रहे, वो भी नहीं जा रहे। कम अज़ कम इंजीनियर साहब सच्ची बात तो बता रहे हैं ना। वो तो सिर्फ इधर बात और कर रहे हैं और जो है ना पीठ पीछे कुछ और। लेकिन वो कहते हैं बुज़दिल भी बना रहा है ना साथ, जा तो नहीं रहा, बुज़दिल भी बना रहा है। नहीं, वो तो सच्ची बात बता रहे हैं ना। वो कौन सा दलेर बना रहे हैं? वो जाए ना फ्रंट से लीड करें फ्रंट से और कहें हमारे पीछे हैं जी, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, आप भी आए मेरे साथ। दलेर वो फिर बनाएं। अब वो भी तो बुज़दिल, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अवाम का खून गरमा रहे हैं और खुद जाके पीछे बैठ जाते हैं आराम से, सुकून से। खुद तो कोई कुछ नहीं कर रहे ना। खुद तो कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आज करंट अफेयर के तौर पर इंजीनियर साहब ने बात की, वो स्वात वाक़या बताया। जी बिल्कुल। किसका कसूर लगता है? मेरे नज़दीक तो ज़्यादा कसूर जो है वो हुकूमत का ही है। जिनके इंतज़ामी मामला जो है वो फ़ेल होते हुए हमें नज़र आए हैं, और उसके अलावा बाकी कोई कुछ कर भी क्या सकता था। उस फैमिली का चले इतना कसूर होगा कि उनको नहीं वहाँ पर जाना चाहिए था। वहाँ के जो लोग थे जिनके वो होटल्स हैं उनको रोकना चाहिए था, लेकिन उनका कसूर तो उस लेवल का नहीं है जितना वहाँ के इंतजामात संभालने वालों का, बड़ों का। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और जो काउंटर नैरेटिव आज इंजीनियर साहब ने बयान किया, जी क्या लगता है इम्प्लीमेंट होना चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए इस पे बिल्कुल। जो 10 पॉइंट्स इंजीनियर साहब ने बताए वो बेहतरीन बताए हैं। अगर ये पहले से इम्प्लीमेंट हुए होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा वाक़या पेश आता। सही हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा भाई किधर से? मंडी बहुत दिन। ओ मंडी वाले हो, जिंदाबाद। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी भैया, कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। इंजीनियर साहब को कब से जानते हैं? तकरीबन हो गया 5-6 साल से सुन रहे हैं। कैसा तारुफ था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। पहले तो हम जिस रास्ते में चल रहे थे, तो जब से इनको सुनना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान और सुन्नत के अमल पे चल पड़े हैं। चल पड़े हैं? नहीं, चल पड़े। लेकिन उलमा कहते हैं इंजीनियर साहब जो हैं वो गुमराह हैं, उम्मत का सबसे बड़ा फितना है, उनको सुनना नहीं चाहिए, अवामुन्नास दूर है उनसे। वो जो इनको नहीं समझ सकते हैं वो ऐसा बोलते हैं। जो कुरान सुन्नत को समझते हैं, कुरान की तरफ चलते हैं, तो वो इनको समझते हैं।
آج کل وہ طارق قادری صاحب بھی دوبارہ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی آ کے انجینئر صاحب کے باتیں نام لے بغیر باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف. دیکھیں نا اتنے بڑے عالم دین کیوں ان کے خلاف ہیں؟ ہم ان کو بالکل کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ اچھائی کی طرف آئیں, لوگ قرآن و سنت کی طرف آئیں, کیونکہ ان کا اپنا کاروبار چلا ہوا ہے, پیسے کا کاروبار چلا ہوا ہے, اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے دور رہے, قرآن و سنت سے دور رہیں. اچھا, یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا باتیں حسین کی کرتے ہیں, کھڑے یزید کے ساتھ ہوتے ہیں, کیا لگتا ہے اس طرح کی بھی بات ہے انجینئر صاحب میں؟ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے, بالکل بھی اس طرح نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے, غلط سوچ ہے, غلط سوچ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, سوات واقعہ آج کرنٹ افیئر کے طور پر انجینئر صاحب نے بیان کیا, جی جی, کیا لگتا ہے کس کا قصور تھا؟ میرے خیال سے تو حکومت کا قصور تھا, جو KPK کی حکومت تھی یا ہماری پنجاب کی تھی. جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں, ان کے اپنے کام ہوں تو ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں, حالانکہ 1.5-2 گھنٹے جہاں پہ وہ بیچارے پھنسے رہے ہیں. دیکھا تو سب نے, آل میڈیا نے دیکھا, کوئی بھی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں پہنچا. تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے نا اچھا عمل کرے. اور جو آج کاؤنٹر نیریٹو 10 پوائنٹ دیے ہیں انجینئر صاحب نے, جی جی, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی بالکل, جی بالکل. کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ جی بہت اچھا, بہت زبردست. بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. آج السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا علی حمزہ. علی حمزہ کدھر سے؟ میں ڈسکا سے الکوٹ سے. ماشاءاللہ, ڈسکا سے. جی. آپ کے شہر کے لوگ وہ جو سوات انسیڈنٹ ہوا؟ جی بالکل, ہمارا شہر پوری طرح سوگوار تھا کل. اس کے علاوہ میں ایک اور پوائنٹ ادھر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے قریب دو نہریں ہیں, ایک موترا نہر اور ڈسکا نہر. آئے دن ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں, اور اس پہ بھی میں انجینئر صاحب کے پلیٹ فارم سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آواز ریز کریں کہ ایک SOPs بنائی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے. اگر بنائی گئی ہیں تو ان پر عمل درآمد نظر آنا چاہیے. عمل درآمد آنا چاہیے. اچھا جی, علی حمزہ بھائی یہ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف کب سے ہے؟ مجھے انجینئر صاحب کا تعارف 2017 میں ہو گیا تھا. نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ نیگیٹو تعارف تھا, ان پہ پہلی مرتبہ اٹیمپٹ تب ہوئی تھی. اچھا, لیکن میں جس طرح مصباحی صاحب کہتے ہیں اللہ سے توفیق مانگ رہا تھا, میں بھی اللہ سے توفیق مانگ رہا تھا. مل گئی نا توفیق؟ بس ایسے 2-3 دفعہ پروگرام بنا, لیکن اس کے بعد کچھ کاروباری کچھ تعلیمی مصروفیات تھیں تو نہیں آ سکا. پھر گزشتہ ہفتہ بھی پروگرام تھا, پھر دوسرے جو ساتھی تھے وہ نہیں شامل ہوئے. پھر الحمدللہ آج اللہ نے توفیق دے دی. اللہ کی مرضی. آپ کو توفیق مل گئی لیکن مصباحی صاحب کو نہیں ملی ابھی تک. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. آمین آمین. اچھا, کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. جیسا میں نے سنا تھا, میں نے کوئی بھی ان میں وہ منافقت, وہ 2 نمبری, وہ 2 رخی اس طرح سے نہیں دیکھی. جس طرح علماء کے ساتھ اگر لفافے کے ساتھ ملیں تو ایکسپریشن اور ہوتے ہیں, ویسے ملیں تو ایکسپریشن اور ہوتے ہیں. میں نے ایسا کوئی میں نے نہیں دیکھا. صحیح ہو گیا. ملاقات کر کے آئے؟ جی ابھی میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. میں اس پبلک آنسر سیشن کے اوپر اور اوور آل جو میں نے لوگوں کے ریمارکس لیے ہیں اس بحاف پہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ باتیں حسین کی کرتا ہے, کھڑا یزید کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا لگتا ہے آج کل کی یوتھ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, حسینیت اور یزیدیت کا اصل محقق کیا ہے؟ آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں حسینیت اور یزیدیت کیا ہے؟ کیا حسینیت یہ ہے کہ جس کو لوگ بوم دے دیں, جس کے پاس شہرت آ جائے وہ حسین ہو جائے؟ بس یہ ایک تاثر ہے. اگر ہم بنیادی حقائق پہ جائیں تو ہم نے فیکٹ اینڈ فیگرز کو لے کے چلنا ہے. ہم نے عالمی ورلڈ کے اندر جو ہمارے خیالات ہیں, میں بینگ ایکسپورٹر بات کر رہا ہوں کہ اوور آل ہم ورلڈ کے اندر ہمارے وضاحت ہوتی ہے, ہم بات چیت کرتے ہیں, تو ہمارا تاثر یہ نہیں ہوتا کہ لو پھاڑ لو, یہ ایسے نہیں. ہر چیز کو ایک ڈیکورم کے اندر لے کے چلنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اپنا کاؤنٹر نیٹیو دینا ہوتا ہے. جب تک آپ علمی طور پہ کسی کو قائل نہیں کر سکتے تو آپ کس طرح سے کسی کو تلوار کے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں؟ تلوار کے مسلط ہوں گے تو آپ چنگیز خاں ہوں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چل, بہت شکریہ بھیا. آئیں جی, اور کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ علی رضا. علی رضا بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ سر گجراوالا سے. گجراوالا سے؟ جی. پہلوانوں کے شہر؟ جی ماشاءاللہ, نظر بھی آ رہے ہیں پہلوان. جی الحمدللہ. کیسا رہا جی سفر؟ کرم اللہ پاک کا. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب؟ تقریباً 4 سال سے. نیگیٹو سنا تھا, پازیٹیو سنا تھا؟ سنا نیگیٹو تھا, جب سنا تو اس کے بعد جو ہے نا پازیٹیو جو ہے. کیسے پازیٹیو ہوا؟ گمراہ آدمی, ایک امت کا سب سے بڑا فتنہ, یہ پازیٹیو کیسے ہو گیا؟ بیسیکلی جو ہے نا ہمیں جیسے سمجھایا گیا شروع سے ہی دین کے حوالے سے, صرف ایک فرقے سے جو ہے نا وہ منسلک کر دیا گیا ہے. کسی بھی حوالے سے نا اگر ہم فرقے سے باہر جائیں گے نا تو ہمیں وہ یعنی کہ ایک کفر کا فتویٰ یا ایک مذہب سے ہی الگ ہونے کا یعنی کہ وہ فتویٰ لگا دیں گے. لیکن انجینئر صاحب نے نا اس سب سے بالا تر ہو کے نا ایک اللہ سے جوڑا ہے, قرآن پاک سے جوڑا ہے, حدیث سے جوڑا ہے, اہل بیت کی وہ محبت سمجھائی ہے جو اہل تشیع بھی واضح طور پہ نہیں سمجھا سکے. میرا بریلویت سے تعلق تھا تو
अहल तशहीह अहल बैत की वजह से अहल तशहीह के साथ भी तल्लक रहा, लेकिन जब इंजीनियर साहब को सुना तो दोनों से वालातर हो के अब कुरान और हदीस और अहल बैत की वो मोहब्बत जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि मेरे अहल बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखना, उस लिहाज से जो हम लेके चले हैं ना, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के इनसे जब जुड़े हैं ना तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह हो गई हैं। आज करंट अफेयर के तौर पर इंजीनियर साहब ने स्वात इंसिडेंट जो बयान किया, क्या लगता है किसकी गलती थी? वो इंतज़ामिया की गलती है, मैं यही कहूँगा जी। और जो आज इंजीनियर साहब ने 10 पॉइंट दिए, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? वकार, वकार भाई किधर से आए हैं? सियालकोट से। सियालकोट से। खैर खैरियत है? कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। रात भर नहीं सोया। अच्छा, रात भर नहीं सोए? हाँ। 10 में सोए तो नहीं थे? नहीं नहीं। 10 सही सोना है? हाँ। अच्छा, इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ? मैं 2-3 साल पहले का। कैसा तारुफ था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? नहीं, अच्छा तारुफ है इंशाअल्लाह ताला। इनको सुना, इनकी बात अच्छी लगी। मैं 1.5 साल हुआ है, मेरा दिल कर रहा था आने का, टाइम की वजह से, मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाया। बड़े बड़े आलिम दीन है आपके सियालकोट में, मिसबाही साहब भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं और आप इधर आए हैं, क्या देखते हैं कैसा है इंजीनियर? और लोग कहते हैं उम्मत का फितना है, गुमराह है। इनकी बात दिल और दिमाग दोनों में उतरती है, ठीक है? किसी भी आलम को सुन ले, एक दिल में उतरेगी या दिमाग में उतरेगी, दोनों में नहीं उतरेगी। इनकी बात रूह को गर्म कर देती है। अल्लाह अल्लाह, समझ आई? लेकिन वो लोग ये भी तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आजकल की यंग जनरेशन यूथ कितने सारे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट बने हुए हैं, वो कहते हैं जी बातें सहन की करते हैं, खड़ा यजीद के साथ हो जाता है। वो जो मर्जी कहने लगे, सच सच ही होता है। सच सच ही होता है। हाँ, समझ आई? कैसा रहा आपका सच जो है- एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा रहा? हाँ। मुलाकात भी की इंजीनियर साहब? हाँ जी। मिल के आए हैं? हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बचा? बिलाल, मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। किधर से? लाहौर। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर ये गजुमता। गजुमता जी। कैसा रहा सफ़र? मज़े का रहा है। बाइक पे आए हैं हम रात को, कोई 10-11 बजे निकले हैं, तो सुबह 4 बजे इधर थे, तो साथ ही होटल में नहा के तो सीधा इधर आ गए। क्या इतने दूर से इतना तरद्दुद करके आया हो? क्यों? खैर गुमराह आदमी है, फितना और जाने और यार सब आलम दीन बस कहते हैं। बस इसी वजह से फिर आए हैं। बड़े बड़े आलम दीन कहते हैं? वो कहते हैं, वो तो बड़ा कुछ कहते हैं कि और भी दीन में भी चेंजिंग करके सारा, वो तो उनका काम है, दीन को बदल के बाकी सारा जो भी है। आपको नहीं लगता? नहीं, बेसिक मेरे दोस्त ने इंजीनियर साहब का मुझे बताया था, तो मैं 1.5 साल से इनको सुन रहा हूँ, तो जितने भी डाउट थे पहले वो सारे क्लियर हो गए। किस तरह के डाउट थे? जैसे कि नमाज का कह लें सबसे बड़ा, ठीक है, बाद में हमें कह लें कि करबला का नहीं बताया गया, ठीक है, वो इन्होंने एक हदीस पे क्लियर कर दिया है 2812, उसके ऊपर बात जाती नहीं है कि उसके बाद कोई बात हो या बंदा बहस करे। कहते हैं बातें हाँ जी, करता है, तो ये सही है? ये के साथ खड़े होते हैं? नहीं नहीं, वो यही तो बात कर रहा हूँ कि 2812 पे उन्होंने बात ख़त्म कर दी है, उसके बाद कोई पागल ही होगा बात करेगा। सही बात। मुलाकात की है? मुलाकात बस वेट कर रहे हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़े का रहा है। अभी नाश्ता किया है, अब बस चाय समोसे का वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह। चल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम यामीन। यामीन भाई किधर से? मैं लाहौर गढ़ी शॉप से। गढ़ी शॉप से? जी, वेलकम जी झेलम अकेडमी में। कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। किधर वैसे टाइम निकाला, इतना दूर आए हैं, क्यों? खैरियत? बस हम मेरा गुमराह हो रहे हैं लोग, तो हम भी हो जाते हैं ज़रा इनके साथ साथ ही। वैसे उलमा यही कहते हैं, ऐसे ही है है ना? यही है ना, जो तासुर दिया जाता है वो यही कब है से कि- सुन रहे हैं इंजीनियर साहब को? मैं हो गया 4 साल। 4 4-5 साल। नेगेटिव तार था या पॉजिटिव था? स्टार्ट में तो इतनी सेंस ही नहीं थी। जो बेसिकली बात हो ना, आपको जो फैमिली से एकदम पता निकलता है ना, तो वो एक इतना समझ दें कि शाउट नहीं था चीज़ का ना, बस जो बताया चल उस पर अमल किया शुरू से हर चीज़। तब अल्हम्दुलिल्लाह जब सुनना शुरू किया, शौर आता है कि चीज़ों का, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हिदायत दी हर काम के हवाले से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हैं नमाज के और बाकी। इंजीनियर साहब को सुन के? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। लेकिन ये आलिम दीन जो इन पे इतराज़ात करते हैं, वो भी बड़े बड़े नाम हैं, क्यों करते हैं? इतराज़ात तो वैसे देखा जाए तो हर इंसान का हक़ है, लेकिन अगर आप गलत को सही कहेंगे ना, वो बात एक किस्म गुनाह है,
کہ اگر آپ کو ایک چیز کا نہیں ہے علم نا تو آپ کو ایک گمراہی میں ہے تو کوئی بات اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک چیز کا جب علم ہو چکا ہے پتہ چل گیا اس کے بعد آپ کریں تو پھر وہ گناہ ہے۔ تو کیسا آج کا ایکسپیرینس اکیڈمی آئے ہیں ماشاء اللہ بہترین، فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ ہاں میرا فرسٹ ٹائم آئی لائف فرسٹ ٹائم دیکھا کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ بالکل پہلے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آج ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ان کا سب کچھ بیان، بعد میں جس طرح وہ ملے ہیں سب سے بہترین کر رہی ہے ماشاء اللہ، تو کوئی ایسی ہوتا ہے نا نیگیٹو بات کوئی ایسی نہیں ذہن میں کچھ بھی نہیں، بہت زیادہ سوات انسیڈنٹ جو آج انجینئر صاحب نے کرنٹ افیئر بھی بنایا، بالکل پوری قوم کے پوری عمر کے دل دکھے ہوئے ہیں، کیا لگتا ہے کس کا قصور تھا؟ قصور تو گورنمنٹ کا ہی ہے، اگر انتظامیہ کا، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو چلے شہید ہوئے ہیں کیونکہ شہید کی وہ بھی ہے نا کہ ظاہر بات ہے شہید کی کیٹیگری میں، اور کیا اور باقی اور جو آج انجینئر صاحب نے کاؤنٹر نیریٹو دیا 10 پوائنٹ دیے ہیں، آپ نے سنے تھے اسٹارٹ میں؟ جیسے میں آیا لیٹ ہوں، لاہور سے آتی ہے ٹرین لیٹ، انجینئر صاحب نے 10 پوائنٹ دیے ہیں، اچھا ہاں علمی پوائنٹ دیے ہیں کہ بھی آئندہ اس طرح کے وقوع سے بچنے کے لیے نا ان پہ عمل کیا جائے۔ اچھا میں ان کا وہ آتی ویڈیو میں ضرور سنتا ہوں سارا کچھ، تو اس کے بعد انشاءاللہ بہترین ایکسپیرینس ہے میرا۔ بہت شکریہ بھیا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام بھائی جان باسط علی ہے۔ باسط علی بھائی؟ جی جی۔ باسط علی بھائی کدھر سے؟ میں چکوال سے آیا ہوں۔ چکوال سے؟ جی جی۔ چکوال تو ہمارے کسی وقت حصہ تھا۔ اچھا اچھا۔ جیلم کا، جیلم اور چکوال جی جی ایسا ہی۔ جی جی بالکل ساتھ تھے۔ کیسا رہا جی سفر؟ جی سفر تو ماشاءاللہ اچھا تھا، اور موسم بھی آج ماشاءاللہ کافی ٹھنڈا ہے، اس لیے آسانی ہوئی سفر میں یہاں پر آنے ہوئے۔ کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ انجینئر صاحب کا تعارف جو ہے جی تقریباً 2021 میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کہ میرے کچھ رشتہ دار وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ بریلوی وغیرہ ہیں، تو ان کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ یار بندہ ہے جو بابوں کو ایسے ایسے برا بھلا کہتا ہے، تو پھر مجھے جو ہے نا انہوں نے کچھ کلپس وغیرہ سینڈ کیے، میں نے وہ دیکھے، میں نے بھی جو ہے نا اس پر ریسرچ کی، میں سوچوں یار یہ کیوں کہہ رہے ہیں بابوں کو برا بھلا، تو پھر جب میں نے جو ہے نا ان کا چینل جو ہے نا وزٹ کیا، ان کی اور ویڈیوز دیکھی، پورے لیکچرز دیکھیں جو بابو نے جو ہے نا اپنی جو دین تصوف کی جو کتابوں میں کام ڈالا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا ایکسپوز کیا انہوں نے، پھر بات پتہ چلی کہ یہاں سے معاملہ نہیں گڑبڑ، معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے بابو نے کام ڈالا ہوا ہے، جیسے بنو امیہ نے پیچھے سے کام جالا ہوا تھا، اسی طرح کربلا آ کے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ معاملہ جنگ جمل اور صفین سے معاملہ خراب تھا، اسی طرح آج کل جو بابے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے جو انجینئر صاحب نے ہمیں توحید سکھائی ہے وہ ان مولویوں نے کبھی نہیں بتانا تھا ہمیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا اکیڈمی میں فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی فرسٹ ٹائم آیا۔ آگے ویڈیوز میں دیکھا؟ جی پہلے ویڈیوز میں دیکھا۔ کیا فیل کیا، کوئی فرق پایا؟ جی بہت سارا جو ہے نا لوگ الزامات لگاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بندے اپنے ہوتے ہیں، سوال بھی اپنے ہوتے ہیں، ہے اس طرح؟ نہیں ایسا نہیں ہے سر، میں نے خود اپنا سوال جو ہے نا لکھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ڈسکس کیا اور جواب ملا ہے مجھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہاں پر آ کے نا ایک الگ ہی روحانیت محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک الگ ہی سکون ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ پر نکلے ہیں، اللہ پاک انجینئر صاحب کی منزل بھی آسان کرے اور ہم سب کی بھی، اور صحیح دین ہمیں جو ہے نا آگے پہنچانے کی۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کہتے ہیں یہ باتیں حسین کی کرتا ہے، کھڑا یزید کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کہتے ہیں جی ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ اب چھوڑ رہے ہیں، پتہ ہے اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں؟ جی ایسے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ حسین ابن علی کے ساتھ ہو یا یزید بن معاویہ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، دیکھیں ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے نا حسین ابن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے انجینئر صاحب والی بات کہوں گا کہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ حسین ابن علی کا نام لیں گے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں ہم انہی کے ساتھ کھڑیں گے، اور جنہوں نے یزید کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے، جہنم میں جانا ہے، وہ یزید کا نام لیتے رہیں، ہم تو یہی کہیں گے بس۔ سوات انسیڈنٹ پہ آج انجینئر صاحب نے کرنٹ افیئر ڈسکس کیا، جی کیا لگتا ہے کس کا قصور تھا؟ وہ کہتے ہیں جی دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، تو کس کا قصور ہے؟ انتظامیہ کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے؟ جی بیسیکلی میرے خیال سے تو حکومت کا قصور ہے جی، ریسکیو کرنا چاہیے تھا۔ آپ بھائی جان 2012-13 سے، ٹھیک ہے، KPK میں حکومت کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب، اور یہ جی PTI کی حکومت، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ ٹورزم کا کھاتے ہیں جی، ٹورزم ہے، اور آپ لوگ اتنا جو ہے نا نہیں کر سکے کہ آپ وہاں پر ریسکیو کے انتظامات کر سکے، لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، بولی والی وہاں میں آ جاتی ہے، لیکن جب کوئی مشکل میں پھنس جائے تو آپ کو کم از کم ان کو بچانا چاہیے۔ اب افغانستان میں
उसी दिन जो है ना सैलाब आया था तो वो हेलीकॉप्टर से बचा रहे थे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर कहाँ है, जलसों में तो फटाफट जो है ना हेलीकॉप्टर पहुँच जाते हैं और बंदे बिठा कर ले जाते हैं जी, ठीक है जी। और आज यहाँ पर आपके रेस्क्यू का निज़ाम क्यों जो है ना ख़त्म हुआ है? बिल्कुल ये अलमी है। और काउंटर नैरेटिव आज इंजीनियर साहब ने 10 पॉइंट दिए हैं, जी क्या लगता है इन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आगे ये मामला जी ना हो सके। उन्होंने सोल्यूशन बताया सर, आप कैमरे लगाएं, बैनर्स लगाएं, ताकि लोग वहाँ से देख कर ही जो है ना पीछे हट जाएं। यार ये जगह डेंजरस, हम नहीं जाना चाहते। बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? मेरा नाम इंजीनियर हाफिज इश्तियाक अमान। इंजीनियर साहब? जी जी। इंजीनियर साहब किधर से हैं? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैं सऊदीया में हूँ। अच्छा। तो मैं अभी सऊदीया से छुट्टी आया हूँ। अच्छा, सऊदीया से छुट्टी आए हुए हैं जी। फर्स्ट टाइम आए इधर? जी फर्स्ट टाइम आया। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? 2015 से। नेगेटिव था पॉजिटिव था? नहीं, न्यूट्रल था। अच्छा। किसी बंदे ने यूं ही वीडियो दिखाई थी तो एक पॉइंट बहुत हिट किया था इंजीनियर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबे आपको या कोई भी जो आलिम दीन आपको जो पूरी बात नहीं बताते, उसमें यह है कि आपने खुद पढ़कर सच की तहकीक क्यों नहीं की। तो वो एक बहुत ज़्यादा मतलब अलार्मिंग पॉइंट था कि बात तो ठीक है, बात तो लॉजिकल है, हम हर चीज़ पर रिसर्च कर लेते हैं, तो इस्लाम के बारे में खुद रिसर्च क्यों नहीं करते। तो वो एक पॉइंट था जो मुझे बहुत हिट हुआ इनका। और इंजीनियर साहब को जब आपने सुनना शुरू किया तो क्या लगता है ये जो बड़े बड़े उलमा हैं ये क्यों खिलाफ हैं? मेरे ख्याल में रोजी रोटी वाला मसला है शायद उनका, क्योंकि इंजीनियर अली भाई के बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, जिसमें जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो कह रहे हैं कि मेरी रोजी रोटी इससे नहीं वाबस्ता। तो डेफिनेटली वो दिलेर तो माशाल्लाह है ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम खुद भी फैमिली वाले हैं और हमें भी पता है कि जब आपकी रोजी रोटी किसी चीज़ के साथ मुंसलिक हो जाए तो थोड़ा चीज़ें मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तासर ये भी आजकल दे रहे हैं कुछ मखसूस जमात के लोग, वो कहते हैं बातें हुसैन की करता है, खड़ा यजीद के साथ हो जाता है, ये क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में ये सच के साथ है, क्योंकि शायद हमें सच सुनने की आदत नहीं है तो, और हम सिर्फ चीज़ों को एक ही नज़र से देखते हैं, तो कोई भी डिफरेंट ओपिनियन जब आता है तो फिर हमें हज़म नहीं होता, और ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि शुरू से ऐसे ही तरबियत हुई है हमारी, तो थोड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना है सच को। आज करंट अफेयर के तौर पर सवात इंसिडेंट जो उन्होंने बयान किया, क्या लगता है आपको, क्या लगता है किसकी गलती है? गलती तो बेसिकली बहुत सारे एंगल में बहुत सारे लोगों के, लेकिन डेफिनेटली जैसे बात है कि बात तो उसकी बात है कि जिसके पास इख्तियार ज़्यादा है, ठीक है ना, जो फौत हो गया है उसको ब्लेम करना तो बहुत आसान है कि वो लेने क्या गए थे। डेफिनेटली मरने तो कोई भी नहीं गया था, मैं खुद अभी इस कर्तू से हो के आ रहा हूँ, हर बंदा मतलब रिक्रिएशन के लिए जाता है, ठीक है। तो बड़ी जिम्मेदारी तो डेफिनेटली हुकूमत वक्त पे ही है, और प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम जो है करेक्टिव एक्शन कर लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं करते। शायद प्रिवेंटिव एक्शन नज़र नहीं आते, अभी मतलब अगर हेलीकॉप्टर आके बचा लेता तो शायद बहुत वाह हो जाती, लेकिन अगर बैनर लगे हुए हैं और उस पर करोड़ों रुपया लगे तो वो कोई नोट नहीं करता, तो शायद वो थोड़ा सा इशू है। तो ये और इंजीनियर साहब ने इसके ऊपर जो काउंटर नैरेटिव दिया है, क्या लगता है इस तरह अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस तरह के मामला से बचा जा सकता है फ्यूचर? शायद मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर साहब का जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है जो पॉइंट्स में बात करते हैं, मुझे खुद बातें पॉइंट्स में ही समझ आती हैं, तो उस तरह पॉइंट्स में जो बात करते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली हम प्रॉब्लम एंड पे तो खड़े होते हैं, सोल्यूशन एंड पे बहुत कम लोग खड़े होते हैं। प्रॉब्लम तो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन जब आप बोलेंगे करके दिखाओ तो वहाँ से फिर वो मुश्किल काम है। तो इंजीनियर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और वो अपने मिशन पे कायम दायम रहे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? हारिस नाम है। हारिस कहाँ से? बहावलपुर से। बहावलपुर से जी। कैसा रहा जी सफ़र आपका? बहुत ज़बरदस्त रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी दूर से झेलम अकेले? अकेले। क्यों, और कोई काम नहीं है? बस अली भाई से एक दिन पहले पिंडी आया था, एक काम भी था, लेकिन अली भाई की मोहब्बत जो मेन चीज़ है जो यहाँ लेकर आई है हमें, वो अली भाई की मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? गुमराह आदमी, फितना उम्मत का सबसे बड़ा। जो बंदा हमें अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़े, उससे बंदा मोहब्बत ना करे। यार बड़े बड़े आलिम दीन कहते हैं, मुझे तो उनकी बात समझ आती है। नहीं, उनको बात हजम नहीं होती। दरअसल अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनको हक बात नज़र नहीं आती, वो हक बात को देख कर भी उसे रिजेक्ट कर देते, तो अल्लाह ही उन पर रहम करे। अच्छा जी ऐसे ही। अच्छा, आजकल यंग जनरेशन में एक ऐसी भी पार्टी आई हुई है, एक मखसूस जमात के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं जी दीनी रखे स्टूडेंट है, लेकिन अब हम उनसे लाने बरात करते हैं, बातें हुसैन की करता है, खड़ा यजीद के साथ होता है। जो वो जज्बाती बातें होती हैं ना, उन्होंने पूरी वीडियोज़ नहीं देखी होती, वो जज्बात में बहक जाते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं। जो फैक्ट एंड फिगर्स पे बिलीव करते हैं और लॉजिकल गुफ्तगू को सुनना पसंद करते हैं, वो इनकी वीडियोज़ को देख कर कहते हैं यार बात तो सही कर रहा है, बात तो सही कर रहा है। जो बंदा फैक्ट्स बताता है ना, उसके लोग खिलाफ हो जाते हैं। अली भाई की ये सोच रहे थे क्रेडिबिलिटी डाउन करेंगे, लेकिन अब आप देख लें पिछले दिनों कैसा तमाशा किया उन्होंने। क्रेडिबिलिटी है तो हर पूरे मुल्क में डिस्कशन हो रही है अली भाई की। बिल्कुल ऐसी बात है, अली भाई की बात कोई आज है पूरी दुनिया बात कर रही है, नहीं जो इंजीनियर बात करती है उसको लेकर उन्होंने तमाशा लाजमी बनाना। ऐसा ही है, वो पिछले दिनों ईरान वाली वीडियो इतनी वायरल हुई थी, हाँ। कितनी कंट्रोवर्सी की है। ऐसे ही। अच्छा, जो स्वात इंसिडेंट हुआ जी, क्या लगता है किसकी गलती थी? टोटल सिस्टम फेलियर सर, सारा हुकूमत का किया जा रहा है। वहाँ KP में कितने सालों से ये हुकूमत कर रहे हैं,
बगैर नाम लिए। जी जी जी। तो बस देख लें आप, इनका फेलियर है और अब जो करंट हुकूमत है उसका भी बहुत बड़ा फेलियर है। सारे मिले हुए हैं, इनको देखना चाहिए। और जो आज अली भाई ने काउंटर नैरेटिव दिया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त था। एक एक फैक्ट एंड फिगर को अली भाई ने हाईलाइट किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। सलाम अलैकुम भैया। क्या नाम है भाईजान? मेरा यासिर। यासिर भाई किधर से? मैं सियालकोट कोटी गारा से। सियालकोट से। वेलकम जी आया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट टाइम आए? जी फर्स्ट टाइम आया। कब से जानते हैं जीनियर साहब? मैं 2018 से। कैसे तारुफ हुआ? मेरा तारुफ हुआ, मेरा दोस्त है उसकी तरफ से तारुफ हुआ था। वो उनको सुनता था, वो मतलब कि पुराना सुन रहा था 2-3 साल पहले का। तो उसने बताया था कि यार बंदा मतलब गुमराह आदमी नहीं, गुमराह आदमी ने कहा बहुत नाइस आदमी है, ठीक है। तो इस वजह से वो मजाक में बात है, वो तोता जो सीन था ना वो उधर था। माशाल्लाह वो इंजीनियर साहब को सुन के तो इस साइड पे आ गया था माशाल्लाह। तो वो बड़ा पसंद करता था। फिर उसके बाद मैंने भी उनकी वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू किए हैं। तो माशाल्लाह क्या कहते हैं, बहुत मतलब पता लगता है कि बंदा एक सच बोलने लगा हुआ। एक चीज़ है सारी, हर चीज़ जो है रेफरेंस के साथ बयान करनी, कोई किसी किस्म की मिलावट वाला सीन नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के इंजीनियर साहब को। तो उनसे उधर से जो है मतलब मैं इनको सुनने लगा हुआ हूँ। और बीच में थोड़ा कट ऑफ भी होता रहा, ठीक है, लेकिन ये है कि मेरा चलता रहता है। मैं सुनता हूँ, इन्हीं को ही सुनता हूँ ना, इन्हीं को सुनता हूँ। इसके अलावा ये कि सम टाइम अगर इतलाफ वाला कोई सीन हो, किसी चीज़ पर देखना हो, कोई चीज़ करनी हो, तो फिर 3-4 बंदे जो है डायरेक्टर साहब को सुन लिया, साहब साहब या 2-3 और भी हैं उनको सुन लिया इससे। अच्छा, आजकल एक तासुर ये भी लिया जाता है कि इंजीनियर सब बातें से आने की करके खड़े इंजीनियर के साथ हो जाती हैं, ठीक है, ये क्या है? ये एक सबके अपना एक ज़हन है, उसको मतलब किसी ने रिसर्च नहीं की, किसी ने सुना नहीं। जब प्रॉपर किसी को सुनना नहीं है तो आप किसी के बारे में मतलब इस तरह कर भी नहीं सकते बात, ठीक है। जब वो बंदा आपने सुनी हो, कोई चीज़ आप में नज़र आई तो फिर आप बोलें तो समझ में भी आती है चीज़। तो इस चीज़ को मैं इतना मतलब नहीं लेता। अब जब आपने सुना नहीं है किसी को या आपने क्या कहते हैं उसके बारे में कोई बात खुद देखा नहीं है बात करते हुए, तो फिर उसके बाद फ़ायदा नहीं है बात करने का। स्वात इंसिडेंट पे आज करंट अफेयर के तौर पर इंजीनियर साहब ने काउंटर नैरेटिव दिया। हाँ जी, क्या लगता है इम्प्लीमेंट होना चाहिए? वो होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। उसके अंदर क्या कहते हैं हमारी हुकूमत का भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या कहते हैं कसूर है। और मैं ये भी कहता हूँ कि एक चीज़ है कि हर साल स्वात जो है मतलब कुछ ना कुछ नुकसान करके जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उसको इस चीज़ पे देखना चाहिए था पहले। ऑब्वियसली टूरिज्म दिखाते हैं। और मतलब आपको इस चीज़ पे इमरजेंसी कोई चीज़ होनी चाहिए, आपको किसी की हेल्प के लिए कोई मामला होने चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जो फैमिलीज़ जाती हैं उनको भी एटलीस्ट इस चीज़ को थोड़ा देखना चाहिए कि कुछ भी मामला हो सकते हैं, मतलब आगे पीछे बंदा देख ले। आप एक पूरी फैमिली लेके जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के मामला होते हैं, तो आप उस चीज़ को भी देखें। फिर वो ये है कि दोनों चीज़ों की साइड पर अगर देखें तो फिर कसूर आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैं देखा जाए तो गवर्नमेंट का कसूर है कि मतलब आप ओवरऑल आपने चीज़ें कुछ करनी हो तो आपके हेलीकॉप्टर से उसी टाइम आ जाते हैं। और जब आपके इस तरह का मामला होता तो आप लोगों को पता ही कुछ नहीं होता। इवन कि आप लोग मतलब घर ही बैठे में आपको पता ही कुछ नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ भाई कहाँ से? कारी अब्दुल रऊफ समद मुजाहिद गाजी जहीर हैदरी। माशाल्लाह ताला, लंबा सा नाम माशाल्लाह। हम तो लाहौर कैंट से मैं तशरीफ लाया, लाहौर कैंट से स्पेशल मिलने के लिए इंजीनियर साहब को जी। अच्छा, ये गुमराह आदमी उम्मत का सबसे बड़ा फितना कौन? ये इंजीनियर। अच्छा, मुझे तो उलमा जितने में बड़े बड़े मैंने तो उनको सुना है, वो तो यही कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बयान अपना दिया ना, उसमें मैंने कहा हसद और बुग़्ज़ और कजरवी। अल्लाह ने यहूदों नसारा को कुफर का फतवा क्यों लगाया है? उनको सब कुछ पता था। अल्लाह ने फरमाया कजरवी की उन्होंने। कजरवी का मतलब जानबूझ के मुंह मोड़ लेना। बिल्कुल सही है। तो उनको अल्लाह ने कुफर का फतवा लगाया है। तो वही फतवा मैंने सुनाना है, लगाना नहीं है। दीन मुकम्मल है, फतवे सुनाने का है, लगाने का नहीं है मौका, ना गुंजाइश है। इसलिए जो लोग जानबूझ के देखे भाई के ऊपर प्यार मोहब्बत ये है कि उस पर रशक करें। इस्लाम कहता है क्या कहना कि ये यार अल्लाह ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इतना इल्म दिया, अल्लाह मुझे इससे भी ज़्यादा दे, ये है रशक। और हसद क्या है? वो ये आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया, वो ये कैसे ले लिया, इसको तो ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। ओ भाई हाँ, नुक्ता चीनी मत करो। तुम्हारे अंदर कौन सी मुकम्मलियत है? तुम कौन से मुकम्मल हो बताओ ना। तुम्हारे अंदर भी कई नकाइस निकाल सकते हैं हम दिन दुनिया के। तुम ये कहो कि यार माशाल्लाह कमी कुताही है, भाई को बुलाओ, दावत दो, उसकी कमी कुताही दूर करो।
इल्म नहीं है उसको बताओ भाई यहाँ कमी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये असल तरीका। ये नहीं है उसको हिट करना, ना हक हिट करोगे वो बहतान है, इल्ज़ाम है। याद रखें, दीन कहता है एक उंगली तुम दुनिया की तो है ना नज़र में, एक उंगली उठाते हो तो 4 तुम्हारी तरफ आती हैं। अच्छा, आजकल एक मखसूस जमात है, उसका एक मखसूस टोला, हाँ। वो तो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंजीनियर जो है ना बातें हुसैन की करता है, हाँ, हाँ। खड़ा यजीद के साथ हो जाता है। अच्छा, यजीद के साथ होता है? कहाँ हो जाता है? उसने अगर देखें, इशू पे भी उसने कभी ये फैसला नहीं दिया कि फ़लाँ जो है मैं उनको जन्नती कहता हूँ या दोस्त की कहता हूँ। ये फैसला अल्लाह ने करना है, लेकिन एक दुनियावी लिहाज से कोई गलती खता हुई है तो उसने वो निकाली है। अब अगर वो ना भी निकालते, एक मिसाल है, तो किसी और ने निकाल देना था। मीडिया का दौर है। वैसे भी मैं ये कहूँगा बरमला कि मौलाना मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੀ वक़्त मुक गई है। क्यों? कि मौलाना गूगल आ गए हैं। इसलिए कि वो आपको पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी देता है। अगर आप उससे तफसीर मांगते हो, वो सारी तफसीरें आपके सामने ले आता है, बताओ भी कौन सी लेनी है, क्लिक करो। इसी तरह फहाइश के मामले में जो आप मांगते हैं वो दे देता है, जो आपने लेनी ले। अब कसूर किसका है? मोबाइल का या वीडियो का? नहीं, हमारी तरबियत का कसूर है। प्यारे हबीब पीर मुर्शिद कायनात अपने साथियों की तरबियत की, इसीलिए वो परेशान थे कि ये मुझे वापस लेने आ गए, मैं अच्छा मुसलमान हुआ हूँ। आपने कहा नहीं, ये तेरी तबलीग है, साथ जाओ वापस हैं, तो वहाँ जाके भी तेरा इम्तिहान है, तो इस्तिकामत रख। तो बात ये है, जितने वो कहते हैं हक के ऊपर, ये तो होता ही है, पैगंबरों के साथ हुआ है। अब देखें, लोगों के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जवाब नहीं था, उन्होंने कहाँ से जवाब दें? लाजवाब थे। आखिर उन्होंने क्या कहा? ये मजनू है, पागल, इसकी बात ना करो। तो इसी तरह उसके मानने वालों के साथ भी क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। ये निशानी है। और याद रखें, जितना कोई अमल सही है उस पर अगर मजाक ना हो तो इसका मतलब है या उसके अमल में कमी है या उसके तरीके में कमी है, वरना मजाक अब करेगा कौन? ये भी सुन ले, ये भी मेरी बात जो है ना अव्वल आपने पेश करनी, बहुत ज़रूरी गुफ्तगू है। जी। मुनाफिक और काफिर हिट करेगा, और मुसलमानों में जिसके पास इल्म नहीं है, वरना मोमिन क्या कहेगा? माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, गले लगाएगा। हम इसको अप्रिशिएट करने आए हैं दर हकीकत में। अच्छा जी, मैंने क्या कहा आपको पहली वीडियो पे कि मैं इनको अप्रिशिएट करने आया जो किसी ने नहीं किया अहले इल्म ने अभी तक। मुझे इस बात का दुख है, और दुख इसलिए है कि इनके दिल साफ नहीं है। इनके दिलों में मोहम्मद अली साहब के बारे में बुग़्ज़ और हसद है, तकब्बुर है। बेशक ऐसे, वरना जो मैंने आज अब गुफ्तगू जो सुनी है वो सारा मवाद है। वो कहते हैं अब इल्म की कमी है ना, समझ की है। न्यूट्रल जब होंगे, अब कुरान में अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब मैंने कई अहले इल्म से पूछा, बताएं जी इस आयत का मतलब क्या है? वो कहते जी ईमान वालों, मैं कहते जो बेईमान ने नहीं मान ले उन्होंने वास्ते। अब यहाँ पे एक बात छुपी हुई है। अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया ये वो किताब है जिसके अंदर शक नहीं, हिदायत है गारी करने वालों के लिए। अब ये नुक्ता समझ लें मेरी नाचीज़ गुनाहगार ज़ुबान से, यहाँ परहेज़ है शक। अल्लाह ने फरमाया शक से मुबर्रा होकर जो इसको पढ़ेगा, चाहे वो मुसलमान है, शक करके पढ़ेगा, रास्ता नहीं मिलेगा उससे सीधे। जो शक से मुबर्रा होकर ये परहेज़ करके पड़ेगा, अल्लाह कहते हैं मैंने उसको हिदायत देनी है। सही हो गया। चले, बातें लंबी हो रही हैं, ये बताएं मुलाकात की? हाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गए माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। उसका आप बता रहे थे, दे के आए? नहीं, वो मैं टेलीफोन होगा तो फिर मैं बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है? जी रिजवान अहमद। रिजवान आगे भी आए हुए शक्ल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 मरतबा। मेरे ख्याल में बात भी हुई है या लाइफ स्टोरी भी हुई है, और बाकी पब्लिक सर्वे जो सिंध से खैरपुर मिले से। अभी हाल ही में तो फिलहाल तो मैं लाहौर से आया हूँ, मेरी जॉब लग गई है इसमें पाकिस्तान रेलवे पुलिस में। अच्छा, एज ए कांस्टेबल, यहाँ पे रिक्रूट कांस्टेबल का कोर्स बेसिक ट्रेनिंग चल रही है मेरी, तो आज छुट्टी मिली तो मैं इधर आया। सवाल आपका ही था जी। जी बिल्कुल, पता लग गया। अच्छा जी, कैसा रहा जी सब? जी बेहतरीन, माशाल्लाह से, अल्लाह पाक के फजल से बेहतरीन। अच्छा, कब से आप इंजीनियर साहब को सुन रहे हो? 2018 से अली भाई का तारुफ हुआ था, लेकिन तारुफ जो हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अल्फाजों में हुआ था। सिंध कौन से एरिया से? खैरपुर मीरस, खैरपुर जो खजूरों का शहर है। वहाँ पे इंजीनियर साहब की जब आप बात करते हो, लोगों को थोड़ा सा बताते हो, तो वहाँ पे क्या रिएक्ट आता है? जी जी, जो पढ़े लिखे तबके, पढ़े लिखे जो तबका है ना, पढ़ा लिखा, जो हमारे जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या कॉलेजेस के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो जिनका कट्टरपनों से जिनका मतलब वास्ता नहीं है ना, जैसे बरेवलिया के अंदर या एलतशई या
अहले सुन्नत में किसी भी मकादब फ़िक्र में ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो जो है ना कट्टरपन में नहीं है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई की तारीफ़ें करते हैं। जो फिर वो एक फ़िरका परस्त हैं, उनको तो पता है उनको फितना ही फैलाना होता है, अपने झूठा दिफा करना होता है, तो अली भाई के लिए बुरी बातें कहते हैं कि ये वो दजाल वगैरह जो आपको पता है कैसे कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनकी इस्लाह करने की, लेकिन ये है कि उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं। हम तो बोलते हैं कि भाई आप अपना, हम तो आपके पीछे नमाज़ें पढ़ेंगे, जिस भी इमाम के पास लेके जाओ। तो जब हम बोलते हैं कि यार इनके पास भी जाओगे, जैसे फ़र्ज़ करें बरेलवी दोस्त हैं, उनको देवबंदियों के पास लेके जाते हैं जानबूझ कर, या तशय्युओं के पास, वो बोलते हैं यार नहीं पढ़नी नमाज, वो नहीं पढ़नी चाहते, हाँ नहीं पढ़ती, वो नहीं होती। तो वो बोलते हैं कि यार तुम सबके पीछे कैसे नमाज़ पढ़ लेते हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो एक अल्लाह से एक राब्ता होता है, और वैसे भी तो हदीस है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया करके इमाम तुम्हें नमाज़ें पढ़ा रहे हैं तो आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ना, अगर तुम्हें सही नमाज़ें पढ़ाएंगे तो उनको भी सवाब मिलेगा और हमें भी नमाज़ों का सवाब मिलेगा। अगर वो गलत तुम्हें नमाज़ पढ़ाएंगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, और उनकी इमामों की गलतियों का वबाल उनके ऊपर है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि कुछ कहते हैं दजाल फितना, आजकल एक नया तबका भी आया हुआ, वो कहते हैं बातें हुसैन की करते हैं, खड़ा यजीद के साथ होता है। हाँ जी जी जी, तो ये असल में जो है ना ये प्रोपेगेंडे का ये ग्रुप है, प्रोपेगेंडे जो करते हैं और खामे हक बात को छुपाने के लिए। और अली भाई तो किसी से डरते भी नहीं है और हक बात करते हैं। और वैसे भी पता है आपको, जो भी किसी मसलक से अगर जुड़ा हुआ होता है तो वो खुल के कभी भी सामने नहीं आता, अगर आता भी है तो वो उसी तरीके से नहीं आता जिस तरह अली भाई से, क्योंकि अली भाई का तो ना तो किसी मसलक से वो जो भी बातें कहनी है उन्होंने हक कहनी है, और ना तो उनको पीछे किसी का परवाह है कि कोई मेरे ऊपर कोई फला मौलवी, हाँ ना कोई मौलवी मेरे लिए कोई खड़ा हो सकेगा, क्योंकि ना तो अली भाई को खुद उसकी पेंशन है, रिटायर है, आपको पता होगा, और ना तो उनका कोई चंदा बुक्स है, ना तो कोई ऐसा वगैरह कुछ ऐसा सीन तो नहीं है, ना तो उन्होंने मसाजिद बनाई है। वो यही बोलते हैं जैसे डॉक्टर साहब वाले, मौलाना मौदूदी वाले, कि भाई सबके पीछे वो उनकी नमाजें हो जाती हैं, और वो भी तकरीबन उनमें से यही है कि वो भी चंदे के कायल नहीं थे, वो भी उन्होंने हक और सच्ची बातें बताई। तो अली भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। और ये है कि कुछ में एडिंग अली भाई करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम नौजवान नस्ल है ना, तो हमें यही बातें समझ आएगी जो अली भाई जैसे आ रही है, बहुत चेंजिंग आ रही है। अब देखें मैं भी सिंध से हूँ और काफ़ी तर सिंध में चेंजिंग हुई है, नहीं तो जालियत तो इंतहा है सिंध वाली साइड, आपको पता है, और पंजाब में भी है, पीरी मुरीदी का ये चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह निकलते आ रहे हैं, तशय्यो भी आए हैं, अहले सुन्नत भी आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अवेयरनेस आ रही है, वो मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज का? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।